So hello friends, and welcome you all to this video of body fluids and circulation. So वैसे तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ हार्ट. सो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर हियर इन दिस चैप्टर, in this introduction part. Okay, so let's begin. And for that, here it is body fluid and circulation. In body fluid we'll come across two things here. It is blood, and second thing is lymph. Okay, in this chapter we will discuss these two things and its circulations also. Okay, so basically blood is what you all must have all must be knowing that blood is a connective tissue. Okay, and it's formed by two things. Okay, it consists two things, that is your first is plasma and second thing is formed element. Okay, formed element. Then let's see the plasma and its constituents. Okay, now plasma is a straw color thing. Its color is straw color. All those things today I will be discussing here in this video is totally from NCERT. Okay, you don't have to read anything more than this. So it is a viscous fluid, and it's about 55% of the whole blood. Then its constituents, and first thing is protein. It constitute protein. Okay, let's discuss from maximum to minimum. Okay, so first maximum contribution is done by water, that is around 92%. Okay, of the total plasma. Then second thing is your protein. Okay, protein constitute around 6 to 9%, and then protein are of three types here. Okay, plasma proteins are of three types. First is देखो FAG, फॉग की जगह पे FAG याद कर लो. ओके, निमोनिक्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर ऑलरेडी नोइंग दिस then you don't have to remember the mnemonics, but if you are not knowing then remember FAG. F for fibrinogen, A for albumin, then G for globulin. Okay, so these are the proteins which are found in your plasma. Now fibrinogen helps for clotting. So clotting protein, we can say it clotting protein, then helps in clotting. Then albumin is osmotically maintains the osmotic balance. So osmotic balance. Then globulin is what? Immunoglobulins, IG, IgA, IgG. So all those things are what? They are in defense mechanism, body defense mechanism. Okay, defense mechanism. Now we have discussed two constituents. Okay, two constituents of plasma. Third constituent and last constituent, and also negligible one, is mineral. Okay, these minerals mainly constitute of sodium, calcium, magnesium, bicarbonate ions, chloride ions, etc. Then there are some few more things found as glucose, then amino acids, lipids. These are also found in plasma. Now one thing that you have to remember here is plasma minus clotting factor. Okay, CF is clotting factor, is equal to serum. Means plasma without clotting factor is serum. Okay, now first thing was plasma, that I have mentioned in that the two types of thing forms the blood. So we have discussed plasma. Now let us discuss the formed element. Okay, formed
elements. Okay, now in formed elements we will be going through three things. पहला चीज़ है erythrocyte, and second thing is leukocytes, and third thing is platelets. Okay, so moving on to erythrocytes. So erythrocytes, these are the most abundant thing, you can say most abundant. And in a healthy man, okay, healthy man, it accounts for 5 to 5.5 million. Then formed in bone marrow, basically in red bone marrow. Okay, so we'll write here red. And it is devoid of nucleus, biconcave in shape. If somebody is saying it is spherical, then it accounts for a disease. Okay, if somebody is saying erythrocyte is spherical, then it is a disease. Okay, spherocytosis, that is called spherocytosis, but its normal shape is biconcave shape. Now all this thing that I will be discussing here ना will be totally from NCERT. मैं NCERT के बाहर से कुछ नहीं बताऊंगा. And if somebody is teaching you beyond NCERT related to this topic, then obviously that guy is desiring a gold medal in physiology from you all. Okay, so हमको physiology में gold medal नहीं लाना है, आपको सिर्फ NCERT पढ़ के नीट क्रैक करना है पहले. Okay, so for that, if you have already read about this through NCERT and you are remembering all those points, so please don't waste your time by seeing this video completely. You can go to the description description. There I have given a link. Using that link, join my group, Facebook group, where I am just uploading NEET practice papers. Till now I have given the NEET practice paper 1, and today I will also be sharing the NEET practice paper 2. And if you are joining me in Facebook, you will get the answer 24 hours after the questions have been sent. Okay, अगर आपने टेलीग्राम में सब्सक्राइब किया, मेरे नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक. इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग द टेलीग्राम चैनल लिंक, देयर यू विल बी गेटिंग बोथ क्वेश्चन एंड आंसर साइमल्टेनियसली. ओके, सो आपकी मर्ज़ी, आप जिस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, यू कैन बी एडेड. सो आप जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए. एंड दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू NCERT एंड वांट टू रिकलेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स अगेन, प्लीज़ एंड तक वीडियो देख लेना. ओके, नाउ एरिथ्रोसाइट्स सब जानते हो, इज़ रेड इन कलर. वाई? बिकॉज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज़ हेमोग्लोबिन. ओके, हेमोग्लोबिन. एंड दोज हु आर who want to know the structure or shape of hemoglobin, please mention in the comment. मैं एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा हेमोग्लोबिन के शेप वेप के बारे में, बट टिल नाउ यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द शेप ऑफ हेमोग्लोबिन. अब देखो, हेमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, एंड किस तरह से बाकी गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, एंड एफिशिएंसी क्या है, सब कुछ, ऑल एवरीथिंग अबाउट हेमोग्लोबिन आई हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया, किस तरह से हेमोग्लोबिन कितना % ऑक्सीजन कैरी करता है, क्या करता है, कैसे करता है, सब डिस्कस हो चुका है. एंड अभी सिर्फ इतना बताऊंगा, 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन जो NCERT में दिया है वो वही बता रहा हूँ. ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड. ओके, 100 ml ऑफ ब्लड. नाउ इसका फंक्शन क्या है? एरिथ्रोसाइट का मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट. ठीक है, गैस ट्रांसपोर्ट. एंड लाइफ स्पैन क्या है? बहुत अच्छा है, याद रहता है सबको, 120 डेज. ओके, एंड डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है? साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज स्प्लीन. ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं याद रखने का. अगर आपको हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो प्लीज़
कमेंट में मेंशन कर दो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एक. नाउ ल्यूकोसाइट्स. सो ल्यूकोसाइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज WBC in common language, okay, layman's language. कलरलेस होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन एंड इट इज़ न्यूक्लिएटेड, जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड था RBC, बट दिस इज़ न्यूक्लिएटेड. देन लेसर नंबर, समथिंग अराउंड 6,000, okay, and then 6,000 to 8,000 per mm cube, okay. shorter lifespan. now ये ल्यूकोसाइट को 2 टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स. पहला ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकेंड इज एग्रैन्युलोसाइट्स. ओके. सो ग्रैन्युलोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. तो उसको रिमेंबर करने के लिए एक निमोनिक्स है. ओके. सो देखो, अगर आपको याद रहता है तो निमोनिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जिसको ऐसे ही याद नहीं रहता है, सो फॉर देम द निमोनिक इज, देखो, ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन, तो ग्रैन से ग्रैंडपा किस में देखा था आपने? बेन 10 में. ओके. तो बेन. ओके. सो बेन. B for basophils, E for eosinophils, N for neutrophil. Okay, basophil, eosinophils, then it is neutrophil. Okay. So देखो, नंबर के हिसाब से एंड वी कैन गो लाइक दिस. ठीक है. मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, देन यूस्नोफिल, देन बेसोफिल्स. सो न्यूट्रोफिल कंस्टिट्यूट अराउंड 60 to 65% एंड इट इज़ अराउंड 0.5 to 1%. ठीक है. अब देखो, न्यूट्रोफिल्स को हम PMN कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, ओके, ल्यूकोसाइट, बिकॉज न्यूक्लियस इसके बहुत, मतलब इसके न्यूक्लियस का जो होता है नंबर ऑफ इस तरह से होता है. तो जितना जितना न्यूक्लियस होगा उतना उतना उसका मतलब एज होगा. ठीक है. पहले मोनोन्यूक्लियर होगा, देन बाई, देन ट्राई, ऐसे करते करते इसका जितना जितना मतलब लाइफ स्पैन बढ़ता जाएगा, एज बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे. ओके. देन यहाँ पे एग्रेन्युलोसाइट में जो बच गया BN के अलावा क्या, MNL, तो लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. ओके. सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट फंक्शन फैगोसाइटोसिस. ओके. देन बेसोफिल्स. देखो, बेसोफिल्स का थोड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं. बेसोफिल से पूछेंगे बिकॉज इसके सीक्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ देंगे. ठीक है. सीक्रेट्स मतलब 3 चीज़ें दे दें, 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से 3 सीक्रेट होते होंगे एंड 4th वन विल नॉट बी सीक्रेटेड. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग सीक्रेटेड बाय बेसोफिल्स. तो फर्स्ट इज हिस्टामिन विच इज सीक्रेटेड. ओके. मैं बात कर रहा हूँ सीक्रेशन की. ठीक है. बेसोफिल सीक्रेट्स हिस्टामिन, देन सेरोटोनिन, देन हेपारिन. ओके. सो ये सब का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है. इन्फ्लामेटरी कैसे करता है, दैट यू विल नो फ्रॉम पैथोलॉजी सब्जेक्ट. ओके. जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ईओसिनोफिल. सो ईओसिनोफिल में आप क्या पढ़ोगे, अराउंड 20 to 25% इसका कंट्रीब्यूशन होता है. देन इन्फेक्शन रेजिस्टेंट. ठीक है. रेजिस्ट इन्फेक्शन. ओके. एंड देन इज एलर्जिक रिएक्शन. मेनली एलर्जिक रिएक्शन में क्वेश्चन आता है, इन एलर्जिक रिएक्शन व्हाट इज़ हेल्पफुल. सो उस जगह पे ईओसिनोफिल हेल्पफुल होता है. ठीक है. रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन. देन लिम्फोसाइट्स.
लिम्फोसाइट्स. सो लिम्फोसाइट्स. ओके, तो लिम्फोसाइट्स में देखो, लिम्फोसाइट्स के बारे में डिटेल किस तरह. इन लिम्फोसाइट्स का मेन काम होता है आपका इन्फेक्शन, मतलब मेनली आप पढ़ोगे लिम्फोसाइट्स को इम्यूनिटी में. ओके, सो इम्यूनिटी में बहुत अच्छी तरीके से लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह की इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड क्या क्या, वो सब अच्छे से बता दूंगा. फॉर टाइम बिंग यू जस्ट रिमेंबर कि लिम्फोसाइट्स में टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं. दैट्स सफिशिएंट. ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही जानना है आपको. देन प्लेटलेट्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा देख लेते हैं. प्लेटलेट्स. ओके, सो प्लेटलेट्स में आपको क्या देखना है. प्लेटलेट्स में ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप स्कीप कर देते हो, मदर सेल. ठीक है, प्लेटलेट का मदर सेल तो कहाँ से होता है. मेगा कैरियोसाइट्स. देन रेंज, मतलब कितना है रेंज, उसका रेंज है अराउंड 1.5 to 3.5 मिलियन. ओके, कितना प्लेटलेट्स पर mm³. ओके, पर mm³. देन हेल्पफुल इन कोएगुलेशन. सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टू गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस, नीट प्रैक्टिस पेपर 2. एंड FB में ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा पहले. उसके बाद अब तक मैंने एक क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, और भी बहुत सारे करूँगा. उसके अलावा आई एम ऑल्सो सेंडिंग सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर्स आफ्टर द चैप्टर इज एंडिंग. और फिजिक्स का जो जो चैप्टर मैंने अब तक बता दिया है उसके रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस FB के ग्रुप और मेरे टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा. Okay, so keep practicing and get ready for NEET. Okay, so with this, thank you.